What's up, guys? Welcome back to you again to the channel The Voice Box. Today, we are going to start with the second chapter of our economics, which is very important as well as easy also. Through this chapter, we are going to start the numerical portion of our economics. You see, economics also have a relation with physics also because physics also has numericals and economics too. So for the humanities students who thought that if we are in arts we no need to learn or study maths, so you are completely wrong. Any of the stream you chose in present time, you have to study maths. So guys, again I welcome you all to the new session of economics chapter 2, that is central problems of an economy. In last chapter I think I have given you a short definition for economic problem. Okay, now let's recap about it, the concept of economic problem. So what is an economic problem? An economic problem, or the problem of choice, refers to the problem of allocation of resources or problem of economizing the use of resources. Yeah, optimizing. Optimizing means positive things. So what it stands, that economic problem actually refers to the allocation of resources, means to give a particular and proper place for storing the goods or resources. Okay, and also using the resources properly for the functioning of the economy, that is economizing. Now let's see the causes. Three main causes. There are other many, but these three are the main causes. Those are unlimited wants, limited means, alternative uses, means हमारी चाहत एकदम कभी कम नहीं होती. अनलिमिटेड वांट्स, चाहत अगिनत चाहत, उसका लिमिटेड मीन्स लेकिन नियमित या लिमिटेड रिसोर्सेस, उसका अल्टरनेटिव यूजेस या एक ही चीज़ के काफ़ी यूजेस हैं. उसके बाद देखते हैं व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. सो इसी के ऊपर हमारा चैप्टर मेनली बेस है कि हमारा इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है. सेंट्रल का मतलब समझते हैं, जैसे देश में होती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी प्रकार इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है. सो लेट्स सी द थ्री मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी. व्हाट आर दोज? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है. ठीक है. आई थिंक इन लास्ट चैप्टर आई टॉट यू अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. In this chapter, you have to use that knowledge of that chapter. Okay, let's come to the first question. What to produce? ठीक है, this is the first main problem of the central, I mean this is the first main central problem of the economy. Okay, the first and the foremost problem of every economy is what goods and services should be produced so that to satisfy the maximum want of the people. मतलब ऐसा क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए जिससे कि लोगों की अधिक से अधिक चाहत सेटिस्फाई हो सके. वही मेन प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस. तो इसी बात को फोकस करते हुए ये वाली क्वेश्चन डील करती है कि ऐसा क्या चीज़ हम अधिक से अधिक प्रोड्यूस करें जिससे कि लोगों की अधिक से अधिक जो चाहत है वो सेटिस्फाई हो. इसमें भी हमारा टू फोल्ड डिसीजन बनता है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस. व्हाट टू प्रोड्यूस तो मैं तुरंत आपको समझा ही दिया, सेम चीज़ है. एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है. तो व्हेन एन इकोनॉमी हैज़ टेकन अ डिसीजन एज what goods and services has to be produced, then it has to be decide what about its quantity. मतलब एक बार जब कोई इकोनॉमी डिसाइड कर लेती है
कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, फिर उसको डिसाइड करनी पड़ती है कि हमको कितनी क्वांटिटी, ठीक है, कितनी क्वांटिटी उसकी प्रोड्यूस करनी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है मन मर्जी आप कुछ भी प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो। आपकी देश की आबादी है 145 करोड़, आप प्रोडक्शन सिर्फ कर रहे हो 10 करोड़, किस तरह से आपका वो सेटिस्फाई होगा। और आप वो जो 10 करोड़ का प्रोडक्शन कर रहे हो वो भी बहुत लिमिटेड लोगों के लिए, लेकिन जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो सभी को चाहिए होता है। तो फिर तो वही बात है कि व्हाट टू प्रोड्यूस यही सवाल पूछता है कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, और इसको फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस चॉइस इज maximization of satisfaction or availability of technology, cost of production and extent of demand। इसी चीज़ को मीन्स ये जो सारे डिमांड्स है वो इस क्वेश्चन को हमारा अफेक्ट करता है। तो ये आपको सारे क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस, व्हाट टू प्रोड्यूस को क्या क्या अफेक्ट करते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन और अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन, extent of demand। These all are very very important thing. You can use this for preparing your notes, short notes or your plain notes also। Now second question, how to produce, कैसे प्रोड्यूस करना है। तो दिस इज द सेकेंड मेन प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ टू ऑर्गेनाइज द प्रोडक्शंस। दीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शंस। मतलब एक तो डिसाइड हो गया चलो क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है। सेकंड सवाल आती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, उसको प्रोड्यूस कैसे करनी है। तो ये जो प्रोड्यूस करने की तरीका है इसमें भी फिर आपका दो तरीका आता है। आइए देखते हैं। फर्स्टली और कैपिटल इंटेंसिव, देन सेकेंडली और लेबर इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव क्या कहती है, अंडर दिस टेक्निक कैपिटल इज यूज्ड मोर देन द लेबर। देन लेबर इंटेंसिव, अंडर दिस टेक्निक लेबर इज यूज्ड मोर देन दी कैपिटल। कैपिटल समझते हो, लेबर समझते हो कि बताना पड़ेगा। अच्छा चलो बता देते हैं। कैपिटल मतलब मान लो आपका एक किराना शॉप है, तो आपको पहले किराना शॉप रन करने के लिए आपको पर्टिकुलर गुड्स अपने गाइड के पैसों से खर्चा करके खरीद के लाना पड़ेगा। आपको दुकान में उसको सजाना पड़ेगा, फिर कस्टमर्स आएंगे आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो वो जो आप पहले अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आपके प्रॉफिट के पहले, दैट इज ओनली कॉल्ड योर कैपिटल। और लेबर के बारे में आई डोंट थिंक सो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो वर्कर्स आपके अंडर में काम करते हैं और आप उनको पर्टिकुलरली पेमेंट देते हो, वही होते हैं लेबर्स। अब इसको क्या क्या इफेक्ट करते हैं आइए देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस, इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, लेबर है आपके पास, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पास प्रॉपर टेक्निक नहीं है तो कोई मतलब नहीं। आपके पास प्रॉपर कैपिटल है लेकिन लेबर नहीं है तो फिर भी आपका कोई मतलब नहीं। आइए तीसरे सवाल पर चलते हैं। फॉर whom टू प्रोड्यूस, एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू द एक्सटेंट डिजायर। ब्रॉडली every economy has two sections, the rich and the poor. Social justice is promoted if more goods are produced for the poor. It could reduce for or promote equality. Low profit could mean low investment, imply low GDP growth। यही कहना चाह रहा है कि हमारे सोसाइटी में भी नहीं, सोसाइटी में ही दो सेक्शंस के पीपल होते हैं, एक होते हैं रिच और एक होते हैं पुअर। अब सोशल जस्टिस की तरह से देखें तो क्या, सोशल जस्टिस की तरफ से देखें तो हम लोगों को गरीबों के लिए ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। इससे क्या होगा कि सोशल जस्टिस तो बनेगा लेकिन जीडीपी ग्रोथ आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि अमीर लोग कम खरीदेंगे तो कम पेमेंट करेंगे और गरीब लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो उन लोग सस्ते दामों पे खरीदेंगे। ठीक है, तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब आइए देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस। सो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी और जीडीपी ग्रोथ, यही कारण से ये अफेक्ट होता है। सो टुडे आई एम स्टॉपिंग इट हियर, फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू। ओके, so today we have